So hello everyone, and today Nobel Prize in the category of physics have been announced. Hardly, I would say, 2 or 3 hours back. So in today's class, we will be discussing in detail about Nobel Prize winners in the field of physics. Last class, yesterday we had discussed about Nobel Prize in physiology or medicine. So now today we will discuss this. Am I audible, visible? मेरी आवाज आ रही है? Everyone, guys. एंड एक चीज और है, एक और चीज आज इंपॉर्टेंट ट्रेंड कर रही थी, वो ये है कि नेशनल फिल्म अवार्ड्स वेर अनाउंस्ड. ठीक है, आप देख सकते हो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के यूट्यूब चैनल पे इट वाज देयर आल्सो. एंड आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो. ठीक है, सो अनाउंस तो अक्टूबर में ही कर दिया गया था, सितंबर अगस्त में ही कर दिया गया था. इट वाज अनाउंस्ड इन अगस्त, बट द अवार्ड सेरेमनी हैपेंड टुडे एंड 8 अक्टूबर. So I have already made a video. Please go and watch it. ये सर्च कीजिए YouTube पे 78th National Film Awards 2024 Career Launcher. You will get this video and watch it. ठीक है. एंड इसमें बस एक चीज ऐड कर लीजिएगा कि दादा साहब फाल्के अवार्ड जब मैं पढ़ा रहा था, सो आई हैड टोल्ड इट पीपल दैट यस नेम हैज नॉट बीन अनाउंस्ड, तो अब अनाउंस कर दिया गया. सो मिस्टर मिथुन चक्रवर्ती हैज गॉट इट. ये बस याद करिएगा, चक्रवर्ती. रेस्ट यू कैन वॉच दिस. ठीक है. यस, एंड दिस वीडियो आई हैव सजेस्टेड एवरीवन प्लीज गो एंड वॉच इट. इसमें मैंने पूरा डिटेल हिस्ट्री बताया है ऑल अबाउट नोबेल प्राइज का. ये भी देख लीजिएगा. गो एंड वॉच इट. And so let's start. Let's begin. अच्छा, कल जो है ना, yesterday we have discussed the class on Nobel Prize in physiology or medicine. उसमें मैंने कुछ होमवर्क दिया था, which I will discuss in the last portion of this class. ठीक है? So let's start with today's class. Now, Nobel Prize in physics is given by Norway, Sweden, Finland, Denmark. Please answer me. बताइए. Nobel Prize in physics कौन सी कंट्री देती है? The right answer actually is B. Sweden is the right answer to this question. I have already taught in this class. पूरा डिटेल मैंने बताया ही है. ठीक है. So Nobel Prize in physics is given by Sweden and Priyanshi Goyal is right. Very good. B is the right answer to this question. Nandini, Divyansh, Namu, the nerd, Ritvik, Mishika, you all were right. The right answer is B is the right answer to this question. तो कहाँ पर है? Let me show. So here is India. This is Sweden, है ना. स्वीडन में यहाँ पर there is a coastal city, Stockholm, which is actually the capital of Sweden. ठीक है. So yes, very good Namo. हाँ, all except from given by Sweden. हाँ, yes, ठीक है. So that is what you should be knowing. So B is the right answer. Now the next is name the institute which gives Nobel Prize in physiology or medicine, and these are your options. कौन सी इंस्टीट्यूट है या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है या कौन सी एकेडमी है जो नोबेल प्राइज इन फिजिक्स देती है? सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, पता नहीं कैसे. नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, प्लीज करेक्ट इट. So it is Ritvika. Okay, Ritvika, I'm very sorry I pronounced your name wrongly. So, what is the right answer? Name the institute which gives Nobel Prize in physics. Because we are talking about physics, I mistakenly wrote physiology. The right answer is yes. The nerd who studies B, Ritvika is saying B. Priyanshi, Goyal, Mishika. Namo, you all are right. The right answer is Royal Swedish Academy of Sciences. B is the right answer to this question. ठीक है. तो ये मैंने पहले भी बताया है. रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज गिव्स अवार्ड फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इकोनॉमिक साइंसेज. ठीक है, ये पता होना चाहिए. जस्ट रिमेंबर दिस. एंड थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं. इट वाज फाउंडेड इन 1739. ठीक है. फर्स्ट नोबेल प्राइज 1901 में दिया गया, उससे पहले ही एस्टैब्लिश हुआ था और पहले का ये. इट्स मच ओल्डर देन द नोबेल प्राइज इटसेल्फ. ठीक है. 1739 रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज वाज established to promote independent non-governmental scientific organizations and all, and for promoting natural sciences and maths. Okay, है ना. And these are the goals of the academy. थोड़ा सा आप देख सकते हो ना. The academy gives Nobel Prize in physics, chemistry and Swedish Riksbank Prize, जिसको economic prize भी कहते हैं, Nobel Prize in economics भी कहते हैं. ठीक है. So that कुछ बच्चे पूछ रहे हैं. देखो, Swedish Riksbank is a bank of Sweden, the central bank, and the name of which the award is given. But the award is not given by Swedish Riksbank. The award is given by this academy, Royal Swedish Academy of Sciences. ठीक है, that is what you should be
knowing about it. और ये है, आप देख सकते हो, ये उनकी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, स्वीडिश लैंग्वेज में, एंड दिस इज देयर बिल्डिंग, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस, ठीक है, ये अवार्ड दिया जाता है, मेन बिल्डिंग, स्टॉकहोम, स्वीडन, एस्टैब्लिश्ड इन 1739. ये उनके प्रेसिडेंट है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के. जस्ट रिमेंबर इट. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द very important topic, that is Nobel Prize in Physics 2024 का announcement. So let's begin with the question. The winners of Nobel Prize in Physics for the year 2024 are, and these are your options. What is the right answer? Yes, Vishika, Namo, the Nerd, Ritvika, Pratik, Priyanshi. बहुत कम लोगों ने आंसर किया. व्हाट अबाउट अदर्स? अभी अनाउंस हुआ तो आपको पता होना चाहिए. द राइट आंसर इज डी, जॉन जे हॉपफील्ड एंड जॉफ्रे ई हिंटन. ठीक है, इन दोनों में इनका नाम बहुत फेमस है. आई विल आस्क मेनी क्वेश्चंस टुडे रिगार्डिंग दिस. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाले स्टार मार्केट. आई विल टेल यू व्हाई इज इंपॉर्टेंट. खैर, ये बाकी सब जो है, दिस इज 2023 विनर एंड दे आर 2022 विनर ऑफ नोबेल प्राइज इन फिजिक्स. दीज आर 2021 विनर्स. ठीक है, तो वो बाकी नहीं याद रखना है. But remember this one, John J. Hopfield and Geoffrey E. Hinton. So D is the right answer to this question. So, and now let's move on to the next question. The next question is John J. Hopfield and Geoffrey E. Hinton have been given the Nobel Prize for Physics for the year 2024 for what? I'm expecting more people to answer. Yes, Namo, Mishika, Ritvika, Pratik, the Nod, Priyanshi, Goel. हाँ, बहुत कम लोगों ने आंसर किया. Why? The right answer is B, for foundational discovery and inventions that enable machine learning with artificial neural network. Now, why I'm saying this topic is very, very important, because इससे question आया है. Neural network, artificial neural network, they have already asked in CLAT 2023. आपको पता है, if you are preparing carefully, if you are preparing properly for this exam, and if you have gone through the previous year question, this topic was asked in the exam. और मैं आपको दिखाऊंगा भी. I will show in today's class the previous year questions as well. ठीक है, इसलिए कि आपको पता तो होना चाहिए कि कोई चीज न्यूज में तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आया है कि नहीं. सो दैट इज व्हाई यू शुड बी नोइंग इट. बी इज द राइट आंसर एंड दैट इज व्हाई टुडेस क्लास इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, एंड हियर बी इज द राइट आंसर. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. जॉन जे हॉपफील्ड, हु इज वन ऑफ द विनर ऑफ द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, इज फ्रॉम विच कंट्री? यूएस, कनाडा, जर्मनी, यूके. ये सभी पूछते हैं. कंट्री का नाम मैंने देखा है कई सारे एग्जाम्स में. दे डू आस्क इट दैट जॉन जे हॉपफील्ड, है ना? Please answer me. Yes, Mishika, Nerd, Namo, Priyanshi, Goel, you are right. The right answer is A. USA is the right answer. America or USA is the right answer to this question. And he is actually, he had studied in which university? कहाँ से पढ़े? Yale University, Cornell University, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge University. So he is from America, है ना? Studied where? थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया होना चाहिए. बहुत मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा इनके बारे में, बट यस, रफ आइडिया शुड बी देयर. यस, मिशिका एंड द नॉर्ड हु स्टडीज बोथ आर राइट. द राइट आंसर इज कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, न्यूयॉर्क स्टेट में मिलेगा आपको. ठीक है, सो बी इज द राइट आंसर. यस रित्विका, यू आर आल्सो राइट. ठीक है, देखो, जॉन जोसेफ हॉपफील्ड इज वन ऑफ द विनर, है ना? न्यूरल नेटवर्क पर इनका रिसर्च है. ठीक है, और ही इज एक्चुअली बॉर्न इन शिकागो, इलिनॉय. इलिनॉयस लिखते हैं बट इलिनॉय पढ़ते हैं. दिस इज अ प्रोविंस इन यूएसए. शिकागो इज अ वेरी फेमस सिटी. सो ही स्टडीड फ्रॉम स्वार्थमोर कॉलेज एंड कॉर्नेल यूनिवर्सिटी. ठीक है, ठीक है, स्वार्थमोर कॉलेज में फिर पीएचडी किया था कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से. दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग इट. इनको अर्लियर ये सब अवार्ड्स मिल चुका है.
ये वाला बहुत फेमस होता है, बोल्ट्जमैन मेडल 2022, ये फिजिक्स में दिया जाता है, ये बहुत फेमस होता है ये भी, ठीक है, बोल्ट्जमैन मेडल. सो ही गॉट इन 2022 और इस साल उनको नोबेल प्राइज इन फिजिक्स दिया गया. ओके, एंड वेयर इट इज कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, सो ये यूएस है. तो यूएस में एक पूरा स्टेट है न्यूयॉर्क स्टेट. न्यूयॉर्क एक शहर भी है, न्यूयॉर्क एक स्टेट भी है. शहर ये वाला जो है ना, ये सिटी है न्यूयॉर्क सिटी, और ये पूरा स्टेट है. देयर इज एंटायर स्टेट आल्सो कॉल्ड एज न्यूयॉर्क. तो यहाँ आपको कॉर्नेल यूनिवर्सिटी मिलेगा, ठीक है. एंड दिस कॉर्नेल यूनिवर्सिटी इज वेरी फार फ्रॉम न्यूयॉर्क सिटी. न्यूयॉर्क शहर से दूर है ना, so that's you should be knowing about. Okay, now let's talk about the next guy, and this is actually very this guy is very important. He was very much in the news last year. ये पिछले साल भी काफी न्यूज में थे. Geoffrey Hinton, he is one of the winners of Nobel Prize in Physics. मेरे ख्याल से previous one से के मुकाबले ये ज्यादा फेमस है. And he is actually a British Canadian, है ना, मतलब born in England and Canada का भी citizenship है and all. Yes, the nerd, Priyanshi, Namo, Pratik, you all are right. A is the right answer to this question. Yes, Divyan, Shritvika. ठीक है, Geoffrey Hinton is the right answer. ठीक है. Okay, and now why this actually I'm saying this is very important. This person is very important is because of this question. Read the question and then answer me. And he left that organization last year for what reason? Geoffrey Hinton is one of the winners of Nobel Prize of Physics 2024. He had earlier worked in a very prominent organization before he resigned last year. Which organization he resigned? Yes, Vishika, very good. He resigned to talk freely on risk of AI. Yes, he believed. ठीक है. अच्छा, इनका nickname क्या है? What is his nickname? He believed, उनको ये fear था कि he is one of the person who is instrumental in making artificial intelligence, but now he believes that it has a lot of dangerous consequences. Yes, Vishika, Priyanshi, Ritvika, the nerd, Pratik, godfather of AI, very good, Nivi, Pratik, you all are right. So he was actually working in Google till 2023, and when he resigned, actually, that is why I'm saying this person is very important. Geoffrey Hinton, इनको गॉड फादर ऑफ एआई भी कहते हैं, ये याद रखिएगा ये सब, ठीक है. यस, ऋत्विका, द नर्ड, प्रतीक, यू ऑल आर राइट. और इत्तेफाक की बात ये है कि हम लोग कल डिस्कशन कर रहे थे इस पर, yesterday in yesterday's class on Nobel Prize in Physiology. जब कल की क्लास की तो उसमें एक जगह बात हुई थी फादर ऑफ एआई की, लास्ट में आपको याद होगा शायद. तो उसमें हम लोगों ने बताया था कि जॉन मैकार्थी को फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, ठीक है. और एक और एलन ट्यूरिंग की बात हुई थी, है ना, कि एलन ट्यूरिंग पर क्वेश्चन आ भी चुका है क्लैट 2023 में. सो वी हैड टॉक्ड अबाउट एलन ट्यूरिंग आल्सो, है ना. एलन ट्यूरिंग को फादर ऑफ एआई नहीं कहते, लेकिन फादर ऑफ थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस कहते हैं, या फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस कहते हैं. सो दीज आर द टर्म्स यूज्ड फॉर एलन ट्यूरिंग. एंड फादर ऑफ एआई जॉन मैकार्थी को कहते हैं, और गॉड फादर ऑफ एआई जेफरी हिंटन कहते हैं. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. He actually resigned from Google, and he worked in 10 years in Google and all, and at the University of Toronto and all and different places. And he resigned because of concern of risk of AI technology. Risk of AI technology का मतलब क्या होता है? मतलब उनको ये fear था कि AI का बहुत ज़्यादा misuse किया जाएगा तो समाज में तबाही मच सकती है. So I hope you are aware. I mean, like these are very common sense now. And the concept of deep fake, आपने सुना होगा ये, है ना? It is very much in the news and all. तो ये लास्ट ईयर काफी न्यूज में आया था. देखो, न्यूयॉर्कर में आया है, सीबीएस न्यूज, फोर्ब्स न्यूज, हर जगह. जियोफ्री हिंटन का देख रहे हो, एआई इज मोस्ट फेमस रिसर्चर वार्न्स ऑफ द नेगेटिव एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, है ना. इसीलिए उन्होंने रिजाइन कर दिया था, इसीलिए बिकॉज ही वांटेड टू स्पीक फ्रीली अगेंस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. अब उस कंपनी में रहेंगे, उसी के लिए काम कर रहे हैं, तो क्रिटिसाइज नहीं कर सकते एआई कॉन्सेप्ट को. हालांकि खुद ही इज हिमसेल्फ कंसिडर्ड एज गॉडफादर ऑफ एआई, but he wanted to resign, come out and say publicly that yes, there are a lot of negative, dangerous consequences of AI. अभी नहीं समझ में आ रहा है, बट धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि कितना. इमेजिन करो, डीप फेक जो है, इट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी जिससे आप ना फेक वीडियो बना सकते हो. इट इज सो डेंजरस ऑफ अ पर्सन, ऑफ एन एग्जिस्टिंग पर्सन. दिस इज सो डेंजरस, इट कैन चेंज द इलेक्शन रिजल्ट, इट कैन हैपन एनीथिंग, इट कैन डिस्ट्रॉय समवन्स कैरेक्टर, कुछ भी हो सकता है ना. इसीलिए दैट इज व्हाई
he talked about the fears of artificial intelligence. ठीक है, और उनको 2018 में टूरिंग अवार्ड मिला था. टूरिंग अवार्ड इज गिवन, मैंने आपको लास्ट क्लास में, yesterday की क्लास में I had discussed it, that Turing Award is also called as Nobel Prize in Computing. ये भी इनको 2018 में दिया गया था, है ना. yesterday की क्लास में मैंने डिस्कस किया था, ठीक है. So he got and all, है ना. So that is what you should be knowing, है ना. He was fearful of deliberate misuse by malicious actors, technological and employment risking and all, है ना. तो उनको इस बात का बहुत फियर था कि ये सब चीज का मिसयूज किया जाएगा. These things will be misused, and that is why he wants to freely speak about the risk of AI, and that is why he resigned. वो चाहते ये थे कि हम बोले खुल के AI के रिस्क के अगेंस्ट, इसीलिए उन्होंने गूगल से रिजाइन किया था. That is why I am emphasizing on मतलब मेरा ये है, this is my intuition that this will be asked somewhere in the exam. इनका नाम पूछा जाएगा, इसकी चांसेस है. This is my intuition. खैर, और इन्होंने he was born in Wimbledon in London and later moved to Toronto also, कनाडा में, and टोरंटो मूव कर गए, है ना. सो ही इज ब्रिटिश कैनेडियन, मेरे ख्याल से दोनों की सिटीजनशिप होगी आई गेस. तो इसमें भी उनको ये वाला अवार्ड तो इस बार मिला. बाकी देख सकते हो कितने सारे अवार्ड मिले, इसमें से ये वाला इंपॉर्टेंट है, टूरिंग अवार्ड और नोबेल प्राइज इन कंप्यूटिंग इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, खैर, तो आप देख सकते हो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, कार्नेजी एंड ऑल, बहुत जगह काम कर चुके हैं इंस्टीट्यूशन में. So let me show you where is Toronto. देखो कनाडा है, यूएसएस के बॉर्डर पे. टोरंटो इज अ वेरी फेमस सिटी इन कनाडा, ठीक है. Here you will find this. हाँ, वहाँ डुअल सिटीजनशिप का हम लोग का कॉन्सेप्ट होता है. इन इंडिया वी डू नॉट हैव, बट यस दे डू हैव. खैर, तो ये है, आप देख सकते हो, जॉन जे हॉपफील्ड, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में, है ना, एंड जॉफ्रे ई हिंटन, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, कनाडा. ठीक है, करेंटली यहाँ होंगे प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, एनजे मतलब न्यू जर्सी, यूएस में. ठीक है, और ये यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा में करेंटली. ठीक है, और इन दोनों को नोबेल प्राइज इन फिजिक्स मिला. यहाँ लिखा फॉर फाउंडेशनल डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस दैट एनेबल मशीन लर्निंग विद आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क. मशीन लर्निंग समझते हो ना, मशीन लर्न कर लेता है कोई चीज, वो एआई के जरिए ही होता है. ठीक है, सो द मशीन कैन लर्न लाइक ह्यूमन बीइंग. अगर बच्चे कुछ सिखाते हो तो बच्चा सीख लेता है ना, अच्छा ये आग है, इसकी तरफ नहीं जाना है, जल जाऊंगा. सो यू टीच द चाइल्ड, सो द टीचर चाइल्ड विल अंडरस्टैंड. Similarly, even a machine can also be taught. उसको भी पढ़ाया जा सकता है और लर्न कर सकता है वो. That's the idea of machine learning, which is linked with artificial intelligence. ठीक है, तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये सब टर्म्स. हाँ, now actually we are talking about artificial neural network. Neural network पे क्वेश्चन आया था, वही मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ. Why this topic is so important. This is 2023 CLAT paper, जो कि लास्ट ईयर है ना. देखोगे एग्जाम क्वेश्चन, देखोगे ये पूरा पैसेज आया था और से पूछा गया था कि वन क्या है, एंड वन वाज एलन ट्यूरिंग. जो आंसर था वो यही था, propose a set of determine whether machine was capable of exhibiting and all. ठीक है, yes, the nerd who studies, yes you are right. हाँ, मशीन लर्निंग के बारे में. हाँ, so this question was already asked about Alan Turing. ठीक है, फिर अगर आप इसमें नीचे जाओगे तो क्वेश्चन नंबर 41 आया था, वो न्यूरल नेटवर्क की तो बात कर रहा. बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स एक्सचेंज सिग्नल्स इन द ह्यूमन ब्रेन, दीज आर कॉल्ड एज न्यूरल नेटवर्क. ठीक है, इसी पर इस साल नोबेल प्राइज मिला. राइट, इज इट क्लियर? ठीक है, सो दे आर आस्किंग एआई मॉडल एंड ऑल, सो दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग इट. तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क होता है, इट इज अ मशीन लर्निंग मॉडल दैट मिमिक्स द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क्स ऑफ द ब्रेन. यानी ह्यूमन ब्रेन जैसे लर्न करता है ना, वैसे ही मशीन भी लर्न कर सकती है. अ मशीन कैन आल्सो लर्न, very similar, not exactly like that, but similar to how the brain learns. ठीक है, so you should be knowing about it, है ना. फिर उसमें ANNs are also key components of many artificial intelligence like LLM, large language model. इसके बारे में थोड़ा पढ़िएगा, please read about LLM. So LLM का एग्जांपल है जैसे चैट जीपीटी हुआ, फिर DAL-E हुआ. We are having nowadays everyone is making, even Gemini we are having of Google, है ना. So ये सब LLM का एग्जांपल है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल का. ठीक है, सो दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग इट. एक और क्वेश्चन है, मैं पूछा था लैम्डा का फुल फॉर्म, लैंग्वेज मॉडल फॉर डायलॉग एप्लीकेशन. ठीक है, तो ये भी गूगल के वेबसाइट पर अगर आप जाओगे, सो यू विल फाइंड इट, लैम्डा, आवर ब्रेक थ्रू कन्वर्सेशन टेक्नोलॉजी. तो अगर आप लैम्डा सर्च करोगे गूगल की वेबसाइट पर जाओगे, तो आप कोई क्वेश्चन दोगे ना, वेरी सिमिलर टू चैट जीपीटी इट बिहेव्स. आप कुछ टाइप करोगे क्वेश्चन तो वो लोग जवाब देगा. लैंग्वेज मॉडल फॉर डायलॉग एप्लीकेशन, दैट्स कॉल्ड एज लैम्डा. दिस वाज आल्सो आस्क्ड इन द एग्जाम इन क्लैट 2023. इसलिए मैंने कहा ये सब चीज आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज ये सब ऑलरेडी पूछा जा चुका है. ओके, इज इट क्लियर?
हाँ, बार्ड प्रीडिसेसर था एक्चुअली। गूगल का जो था वो बार्ड था, उसको बाद में जेमिनी बना दिया गया। लेटर ऑन इट बिकेम जेमिनी, है ना? यस नमो, यू राइट। हाँ, नाउ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग अबाउट द हिस्ट्री। पास्ट में थोड़ा सा जाते हैं और नोबेल प्राइज इन फिजिक्स के बारे में थोड़ा सा जानते हैं पास्ट में, द फेमस प्रोमिनेंट वंस स्पेशली। नाउ लेट्स बिगिन विद दिस क्वेश्चन। Read the question and then answer me. You are supposed to answer what are x and y respectively. x and y दोनों बताना है, एक ही कमेंट सेक्शन में दोनों लिखिएगा, ठीक है? Okay, Tolika, I have acknowledged your request. I will try to find out the time and make a class. ठीक है? हाँ, CV Raman, Raman effect. Yes, the nerd, Vishika, Priyanshi, Vishika, Pratik. हाँ. So he was an Indian physicist known for his work in the field of light scattering. ये सब पता चलेगा, रमन इफेक्ट की बात हो रही है। चलो यहाँ भी नहीं समझ में आया। यूजिंग ए स्पेक्ट्रोग्राफ दैट ही डेवलप्ड, ही एंड हिज स्टूडेंट के.एस. कृष्णन, हो सकता है आपको नहीं पता हो, इवन आई वाज नॉट अवेयर ऑफ दैट, and discovered when light traverses a transparent material, deflected light changes its wavelength. ठीक है? This phenomenon hitherto मतलब from now onwards, उस वक्त के बाद से, was called as scattering of light. They called modified scattering and all. ये सारी बात हम नोबेल प्राइज इन फिजिक्स की क्लास में क्यों डिस्कस कर रहे हैं? बिकॉज ही वॉज अ विनर ऑफ नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन विच ईयर? इन विच ईयर? सीवी रमन, डॉक्टर सीवी रमन। और इस स्कैटरिंग को कहा जाने लगा रमन स्कैटरिंग या रमन इफेक्ट कह सकते हो। एंड ही गॉट नोबेल प्राइज इन द ईयर 1930, ठीक है? एंड इन हिज मेमोरी वी सेलिब्रेट a very famous day called as National Science Day. कब मनाते हैं? National Science Day we celebrate because in 1928, हाँ 1930 में तो उनको अवार्ड मिला था। वेरी गुड मिशिका, प्रतीक, नमो, ऋत्विक, प्रियांशी, ऑल द राइट। हाँ, he got Nobel Prize in Physics in 1930, but 2 years before it, in 1928 on this date, हाँ 28 फरवरी, very good, the nerd who studies, you are right। हाँ, yes, Nevi, you are also right. 28th February 1928, he discovered Raman effect, and because of which 2 years later he got Nobel Prize in Physics. ठीक है? National Science Day का थीम क्या था इस साल? What was the theme this year? Please tell me the theme. I have already made a class on days and themes. आपको बस सर्च कर रहा है important days and themes 2024 career launcher. You will get this video. इसमें मैंने already बताया भी है National Science Day 2024 का theme this year. डेज एंड थीम से ऑलरेडी सवाल आ चुका है, सो अगेन दे कैन आस्क। व्हाट वाज द थीम? मैंने ऑलरेडी क्लास ले रखा है, सो आई एम एक्सपेक्टिंग यू ऑल टू आंसर। यस मिशिका, वेरी गुड। इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज फॉर विकसित भारत। यस, ये मैंने ऑलरेडी बताया है। कुछ नहीं याद होगा तो ऐसे विकसित भारत याद रखना। इंडिजिनस मतलब होता है अपना, मेड इन इंडिया, मींस वी आर नॉट इंपोर्टिंग। इंडिजिनस टेक्नोलॉजी मतलब मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट, कि हम लोग अपने कंट्री में टेक्नोलॉजी बनाए। विकसित भारत मतलब डेवलप्ड इंडिया, मतलब मेक इन इंडिया टेक्नोलॉजी फॉर डेवलप्ड इंडिया, इस तरह समझ सकते हो इसका ट्रांसलेशन, ठीक है? सो याद रखिएगा। एंड सीवी रमन वाज एक्चुअली अ पर्सन हु द नोबेल हु वर रिजाइडिंग इन इंडिया एट द टाइम दे वर अवार्डेड नोबेल प्राइज। हाँ, तो वो इंडिया ही में रह रहे थे उस टाइम पर। हाँ, सो जस्ट रिमेंबर ही वाज एन इंडियन हु गॉट नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, है ना? स्कैटरिंग ऑफ लाइट या रमन इफेक्ट जिसको कहते हैं, है ना? That is what you should be knowing it. Now the next one, another important question. ये भी मैंने बताया है, बट उसमें से जो कीवर्ड्स है वो थोड़ा सा मैंने रिमूव कर दिया है ताकि it should not become very easy. बट ये भी मैंने कभी ना कभी क्लास में बताया है। Guys, please answer. बस एक दो लोग आंसर लिख रहे। यस, मिशिका हैज आंसर्ड मी, वेरी गुड, एंड ऋत्विका इज आल्सो राइट। किसी ने स्टीफन हॉकिंस लिख दिया। देखो, इंडियन अमेरिकन की बात हो रही है, ठीक है? मींस ही वाज एन इंडियन ओरिजिन पर्सन हु वेंट टू अमेरिका, है ना? सो एस
सुब्रमण्यम चंद्रशेखर कहते हैं, और इनके नाम पर एक चंद्रशेखर लिमिट है। मैं बता देता हूं कैसे आपको आंसर पकड़ना था यहां से। सो स्टार्स के अगर बारे में आप पढ़ोगे ना, तो एक चंद्रशेखर लिमिट होता है 1.44 इंटू द मास ऑफ सन इज इक्वल टू चंद्रशेखर लिमिट, है ना। वो डॉर्फ प्लैनेट वगैरह, डॉर्फ स्टार डिफाइन करने के लिए होता है। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, ठीक है, इज एन इंडियन अमेरिकन थियोरेटिकल फिजिसिस्ट, है ना। नोबेल प्राइज फिजिक्स जीता था 1983 में अलॉन्ग विथ विलियम ए फाउलर। इनके नाम पर दो फेमस चीजें, एक है चंद्रशेखर लिमिट और दूसरा है चंद्र एक्स-रे ऑब्जर्वेटरी, ठीक है। ये दोनों इनके नाम पर है, सो प्लीज रिमेंबर, है ना। तो उसी से फिर हाँ मैसिव स्टार्स, ब्लैक होल्स की बात होती है ना। एंड वाज बोर्न इन इंडिया बट ही लेटर मूव्ड टू एक्चुअली अमेरिका ना। बाद में जाके नॉन सिटीजन बन गया, मतलब ही बिकेम द सिटीजन ऑफ अमेरिका, ठीक है। सो 1983 में ही गॉट द नोबेल प्राइज, है ना। स्ट्रक्चर एंड एवोल्यूशन ऑफ स्टार्स के लिए, है ना। सो दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग। 1.44 टाइम्स द मास ऑफ द सन इज चंद्रशेखर लिमिट। व्हाइट ड्वार्फ डिफाइन किया जाता है। देन इसी से फिर कॉन्सेप्ट सुपरनोवा, ब्लैक होल, सारा कॉन्सेप्ट यहीं से आता है। आई एम नॉट गोइंग वेरी मच इन डिटेल, बट यू शुड नो, हाँ, ठीक है ना। चंद्र, व्हाइट ड्वार्फ एंड ऑल। ओके, नाउ लेट्स मी गिव यू द यस्टरडेज होमवर्क। तो मैंने ये क्लास की थी कल, नोबेल प्राइज विनर्स 2024 फिजियोलॉजी और मेडिसिन। मैंने लास्ट में होमवर्क यही दिया था कि आप विनर्स का लिस्ट का नाम बताइए जो नोबेल प्राइज विनर्स जीते हैं, सो दैट फॉर रिवीजन पर्पस। और बहुत सारे लोगों ने आंसर किया, है ना। प्रीतम, सैनिटी, क्लैट क्रैकर, प्रतीक, विष्णु, गोपेश, देन राशिका, मुक्ति शर्मा, प्रिया अग्रवाल, है ना। हाँ, कुछ लोगों ने तो ये बताया, जैसे जॉन मैकार्थी, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। दिस वाज आंसर्ड बाय क्लैट क्रैकर, वेरी गुड, दैट द फर्स्ट फादर ऑफ एआई कहते हैं। एंड प्रिया अग्रवाल वाज हैप्पी दैट शी इज लर्निंग अ लॉट फ्रॉम मी, सो इट्स ग्रेट, यस, वेलकम, ठीक है। नाउ लेट मी गिव यू टुडेज होमवर्क। टुडेज होमवर्क इज अगेन द सेम। जो आज मैंने नोबेल प्राइज विनर्स का नाम बताया, दोनों का नाम बताइए and their achievements, इसको दोनों को कमेंट सेक्शन में लिखिए। Now you'll be asking, sir, why are you asking it? Okay, because it will help you if you write. अगर आप लिखोगे तो सर मेमोरी में आता है, it will help you revise, है ना। So क्या लिखना है नीचे कमेंट में, after the class is over you will be provided a recorded video, और नीचे कमेंट सेक्शन में बस दोनों का नाम लिखना है, विनर ऑफ द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2024, और उनका अचीवमेंट लिखना है जो नोबेल प्राइज वालों ने लिखा है, वही एग्जैक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। So this is all about today's class. Please press the like button, subscribe to our channel, because next इस week में most likely next week से या next week से हम लोग revision classes भी start करेंगे, ठीक है। We'll be having a lot of revision classes, ठीक है। तो आप लोग जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, please subscribe to our channel, because we will be coming up with a lot of content in the next 1 or 2 months, ठीक है। So thank you everyone, thanks for watching, have a nice day.